کشمیر کے معاملے میں ہرگز UNO یا UNO کے کوئی سیکرٹری جنرل یا UNO کی کوئی بھی ثالثی قطعاً قبول نہ کی جائے۔ UNO امریکہ کا زر خرید اور امریکہ یہودیوں کا غلام، لہذا اگر اس طرف آپ نے رخ کیا یہ کشمیر کچھ اور ہو جائے گا، یہاں کوئی اسرائیل وجود میں آ جائے گا، کوئی یہودیوں کو اور امریکن کو قدم دبانے کا موقع مل جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے آج نجد کی سرزمین میں امریکہ کی فوجیں آ کے ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی ہیں، جہاں سے نکالا گیا تھا اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، نکال باہر کرو ان کو۔ لیکن یہ کہ ان کی ڈپلومیسی جس طریقے سے دانا پھینکا، جال بچھایا، صدام کو پھانسا، اس کے بعد جو کچھ کیا ہے، برکس نکالا عراق کا، اور عراق کا تو جو برکس نکلا سو نکلا، وہ اپنی فوجیں لا کر وہاں بٹھا دی، سارا تیل اب ان کے قبضے میں ہے۔ یہی معاملہ ہوگا یہاں، ہندوستان اور پاکستان دونوں دیکھتے رہ جائیں گے بلیوں کی طرح، اور وہ بندر چچا سام بندر جو ہے ساری روٹی خود کھائے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ راستہ دوسرا ہے، بھارت کے ساتھ براہ راست گفتگو کرو، انہیں بھی ہوش آ جائے، کچھ آ چکا ہے، نظر آ چکا ہے۔ کشمیر کے حریت پسندوں نے ان کے ہوش ٹھکانے کر دیے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال باہمی گفتگو، اور اگر کوئی ثالثی کسی درجے میں، کوئی گڈ آفیسز، کوئی بھی ہمیں ذریعے درکار ہے، تو جو پڑوسی ممالک ہیں ایران اور چین، ان کی مدد حاصل کر کے کوئی مفاہمت جو ہے لوکل طے کی جائے۔ یونائٹڈ نیشن جو امریکہ کا زر خرید ہے، اس کا خانہ زاد ہے، اور امریکہ کہ جو یہودیوں کا اسیر ہے، اس کے ذریعے سے کوئی خیر نہیں آ سکتا۔ ہندوستان کے ہندوؤں نے کشمیریوں پہ ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون جب بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کشمیریوں کا خون بھی جم جائے گا اور ہندو ذلیل ہو کے نکلے گا انشاءاللہ۔ یہ تو مسلمان ہیں ہمارے، تقریریں کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اور کوئی ہمدردی نہیں۔ کیا ہمدردی ہے؟ ہم مذمت کرتے ہیں، تمہاری مذمت سے کیا اگلے کانپ جائیں گے، ڈر جائیں گے؟ جو روز گولیاں چلا رہے ہیں، کلسٹر بم مار رہے ہیں، وہ تمہاری مذمت سے ڈر جائیں۔ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم ساتھ دیں گے۔ کس بات کا ساتھ دو گے؟ آج تک دیا ہے تم نے ساتھ؟ تم بھی 1 لاکھ بندہ کشمیریوں کے لیے قربان کراؤ نا، دیکھو مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صرف نعرے لگاتے رہو تو پھر کیا ہے؟ اللہ ان کی مدد کرے گا، نہ کرو تو مدد۔ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، امت لہو لہو ہے، اور 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں کہاں؟ کیا یہ چیخ بھی نہیں سکتے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے؟ گاجر مولی کی طرح اس امت کو کاٹا جا رہا ہے۔ انسانیت کا بہتا ہوا خون کیا دنیا کے اندر امن کے ٹھیکیداروں کو نظر نہیں آتا؟ کشمیر کے اندر 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہو گئے ان 17 سالوں میں، 90,000 بچے یتیم ہو گئے، 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو گئے۔ وہ وادی جنت نگاہ انگاروں میں لپٹی ہے، ڈل جھیل کے پانی پر لاشیں تیر رہی ہیں۔ وہ چناروں کی سرزمین آج خون سے لالہ زار بنی ہوئی ہے۔ کیا پوری دنیا نابینا ہے؟ اس کی آنکھیں نہیں ہیں؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے امن کے ٹھیکیدار؟ کہاں انسانیت کے حقوق کی بات کرنے والے؟ کہاں انسانی تقدس کی کہانی کا نغمہ چڑھنے والے؟ جو بلیوں اور کتوں کے حقوق پر تنظیمیں بنائے، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آج انسانیت کا یہ لٹتا ہوا قافلہ انہیں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ وہ کیوں نابینا ہو گئے ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں، یہ NGOs، یہ چیخ چیخ پہ انسانیت کا نوحہ پڑھنے والے مختلف چینلوں پہ آج کہاں مر گئے ہیں؟ اور افسوس تو یہ ہے کہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران بے حس ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ 70-72 سال ہو گئے، کشمیر کی بیٹیاں روتی ہیں، اے اللہ 30,000 عورتیں بیوہ ہیں۔ خدا بندہ وہ کسی شہاب الدین غوری کا انتظار کرتی کہ اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، ہمیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اللہ ملک شام کے مسلمانوں پہ اپنی رحمت فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما، ان بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے،
मैं बुलबुल नाला हूँ उजड़े गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे, पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा बना दे, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठंडा सवेरा हमें अता कर दे। ऐ अल्लाह हमें गैरत ईमानी दे, जज्बा जिहाद दे, शौक़ शहादत दे। बाकी जो भी पाकिस्तान में होता रहा आपको पता है, कश्मीर के जिहाद के नाम के ऊपर, उसमें पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान में जो तंजीमें थी उनके अपने अज़ाइम थे, वहाँ के जो मुखलिस मुजाहिदीन हैं उनके अपने अज़ाइम थे। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे अब आपने ये सारी की सारी एफर्ट पुट करके देख ली है। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को पॉलिटिकल स्ट्रगल की तरफ जाना चाहिए और इसी के ऊपर एम्फसाइज करना चाहिए। आज के इस मॉडर्न दौर के अंदर एक आम आदमी हथियार उठा के भी ट्रेंड जो आर्मी है जिसके पास लेटेस्ट असला है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस हवाले से जो उलमा आप लोगों को मिसगाइड करते हैं चंद एक लोग, और वो मिसालें देते हैं कि जी बदर में 313 थे और उसके बाद भी रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ भी मुख्तसर सी मुसलमानों की जमात गालिब आई। तो मेरे भाई उसमें तो एक सीधी सी बात है कि अगर खालिद इब्न वलीद यहाँ से तलवार लेके गए हैं तो सामने से भी जो रोमन जनरल है वो तलवार ही लेके आया है। मुझे ये बताइए, अगर यहाँ से सारे सहाबा सारे ताबईन मिल के चले जाएं और सामने से एक रोमन जनरल अपने हाथ में क्लाशनकोफ लेके आता, तो क्या आज हम सहाबा किराम की बहादुरी की मिसालें दे रहे होते या हम उनकी शहादत की खबर आपको सुना रहे होते? तो उस जमाने में असला बराबर ही का हुआ करता था, लेकिन आज ये रेशो प्रोपोर्शन डिस्टर्ब हो चुका है। नाइट विजन्स, जो नाइट विजन वाली दूरबीनें हैं प्लस लेजर गाइडेड जो असला है, उसके मुकाबले में तलवार, डंडे या पुराने स्टाइल के रिवॉल्वर, उनसे आप क्या मुकाबला करेंगे? नुकसान ही उठाएंगे। अल्लाह की तरफ रुजू लाएं, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जारी रखें और बेहतरी की तरफ इन मामलात को लेके चलें। ये बात तो हम मानते हैं कि हिंदुस्तान की सारी आवाम एक जैसी नहीं है। ये वन मैन शो चल रहा है, मोदी की हुकूमत है, उसे मुसलमानों से कोई ज़्यादा बोझ है। तो ये हिंदुस्तान की आवाम का भी फ़र्ज़ है और पाकिस्तान की आवाम का भी फ़र्ज़ है कि वो मोदी के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और कश्मीरी भाइयों के साथ जो वो जुल्म हो रहा है उसमें उनके दुख दर्द में शिरकत का ऐलान करें। यहाँ की आवाम की भी ज़िम्मेदारी और वहाँ की आवाम की तो यहाँ से भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये वन मैन शो है। एक शख्स की सियासत ने पूरे मुसलमान दुनिया को मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया है और एक शख्स की सियासत पूरे हिंदुस्तान को बदनाम कर रही है। बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, वहाँ की जो फ़ौजी मुदाखलत है बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ की आवाम का तो ज़्यादा हक बनता है कि वो एहतजाज करें हुकूमत के ख़िलाफ़ कि हम कश्मीरियों पे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कम से कम दर्जा सोशल मीडिया पे इस आवाज़ को बहुत ज़्यादा उठाया जाए। जो जुल्म और बर्बरियत वहाँ हो रही है उसकी तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि लोगों को पता तो चले। कम से कम दुआ की जाए उनके लिए और जालिमों के लिए हिदायत की दुआ की जाए और ये भी दुआ की जाए कि अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। आप नहीं जानते कि हमारे इस्लामी मुल्कों में क्या हो रहा, क्या बयान करूँ, सियासत की जरूरत नहीं, मगर आप सब जानते कि काफिर मुल्क जाना उनकी कोई इज्जत। हिंदुस्तान की हम शिकायत करते हैं, पूरी दुनिया क्यों उसका एहतराम करती? काफिर है बेईमान, मगर उसके यहाँ जमहूरियत है, इंतखाब होते हैं, अदलिया आजाद है, जज जो है ना वो सदर को वजीर है उनको कैद कर लेते हैं। यहाँ कोई नहीं है, पहले फोन करके पूछते हैं क्या फैसला लिखें। ये इस्लाम है यहाँ? क्यों कश्मीर चाहते हो, क्या करते हो? उनकी मदद करते हो। उन्होंने साफ कह दिया कि यार जान छोड़ो हमारी, हम अपना अलग कश्मीर चाहते हैं। उनकी मदद करके जाने दे रहा हो। ऐसी कीमती जाने कि अगर वो अल्लाह के दीन की खिदमत में लग जाती तो मैं यकीन करता हूँ कि इनमें से बहुत बच्चे ऐसे थे कि वो इस्लाम के बुरे सर सब साबित होते, बहुत चोटी के लोग साबित होते, इस्लाम की खिदमत करते, जोश में आए, चले गए, जाने देनी, अल्लाह उनकी कुर्बानी कबूल करे। मगर वो जालिम जो गलत रहनुमाई कर रहे हैं कि दीन का काम इन बच्चों से नहीं लेते, इनकी बयान मरवाने में लगे। और आप सारे जानते, अब ये राज नहीं रहा कि ये काम एजेंसियां करती, सरहद पार कराती, असला देती कि ये छोड़ नेक बच्चे मरवा दिए, मैदान खुला हो जाए, ये जो भी चाहे करेंगे। मैं अगर कश्मीर का जहाज फर्ज है, वाकई फर्ज है कि हमारा इलाका है, उन्होंने जबरदस्ती थी ना, ऐलान क्यों नहीं करते?
क्यों दुनिया के सामने झूठ बोलते हो कि हमारे बंदे वहां नहीं जाते, हम दरअंदाजी नहीं करते? ऐसे झूठ कर रहा हूं बिहार, उनके साथ तुम गले मिलते हो, मुसाफे करते हो, मुज़ाकरात करते हो, और दीनदार बच्चों को बर्बादते हो। फौज क्यों खाती है? इतना फंड इन पर खर्च होता, सबसे ज्यादा बजट ये खाते हैं। ये आगे बढ़े, ऐलान करें, और फिर हमने सारे फर्ज होगा कि वो हुकूमत के साथ मिलकर अमीर और इमाम फासिक को, बेशक इमाम ने बुखारी फरमाते हैं बरन काना फाजिर, नेक हो ये बात जो इस वक्त है सरबरा, वो ऐलान करे सारी दुनिया उसके। अय्यूब ने किया था, अल्लाह उसको माफ करे, कह दिया, सारे उलमा साथ हो गए कि वाकई यार ये अय्यूब का मसला, मुल्क की सलामती का मसला, वो जहाज होता, मरो तान मन दान कुर्बान करो। ये क्या कि हुकूमत फरेब करे, दीनदार बच्चे मरवाएं, और दीन का काम जो हमें पुकार रहा है कि पूरी दुनिया में सफर है, खुदा के लिए उसके लिए निकलो, दीन को दुनिया में पहुंचाओ, काफिरों को जन्नत में ले जाने की कोशिश करो, वो बड़ी के। आज कश्मीर के मुसलमान परेशानियों में हैं, गमों में हैं, दुखों में हैं, जुल्म और जबर की चक्की में पिस रहे हैं। कैसे हो सकता है कि हमारे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भाई परेशान हों और हम खुशी की और आराम की नींद सो जाएं? जिसके दिल में ईमान की लज्जत हो, जिसके दिल में ईमान की रौनक हो, जिसके दिल में ईमान का नूर हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। मुसलमान परेशान होगा तो पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान होंगे। जुबान, रंग, कौम, नस्ल, ये इस्लाम में नहीं है। इसकी बुनियाद पर मुसलमान नहीं तड़पते। मुसलमान के यहां बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला काला हो या गोरा, गरीब हो या अमीर, आजाद हो या गुलाम, दुनिया के किसी कोने में उसे तकलीफ होगी तो धरती का हर वो बंदा जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो गमगीन होगा। जिस तरह आज पूरी दुनिया के मुसलमान अपने कश्मीरी भाइयों के लिए परेशान हैं, गमगीन हैं। जिसके इख्तियार में जो है उसको अपना किरदार अदा करना चाहिए। पूछने वाला पूछ सकता है, हम अवामुन नास हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं। आपके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है, आपके हाथ में बहुत बड़ी कुव्वत है, और वो कुव्वत क्या है? रातों को उठिए, अपने हाथों को बुलंद कीजिए, अल्लाह के सामने अपने इन मजलूम, मजबूर, कमजोर, बेसहारा भाइयों और बहनों के लिए दुआएं कीजिए। आपकी दुआएं बड़ी कीमती है। हो सकता है किसी मुसलमान की दुआ अल्लाह के यहां कबूल हो जाए, और अल्लाह हमारे इन मुसलमान भाइयों के ऊपर आने वाले इन परेशानियों को, इन गमों को, इन दुखों को, इन मुसीबतों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, और खास तौर पे कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। कि कश्मीर इस वक्त सिर्फ यूं नहीं कि कानून के ज़रिए से कश्मीर की हैसियत ख़त्म कर दी गई है, बल्कि कश्मीर को मसख़ किया जा रहा है। कश्मीर का कल्चर, कश्मीर की जमीयत, कश्मीर की हैसियत, सब कुछ नाबूद किया जा रहा है। और ये बातें ना मीडिया पे आ रही हैं, ना कश्मीर के अंदर से कोई इन बातों को बाहर पहुंचा रहा है। वो तो अंदर मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन बाहर भी जो कश्मीर के नाम पर फंड लेते हैं वो भी खामोश हैं। अपनी नस्ल को महफूज रखें, उनका सख्त इम्तहान है अहले कश्मीर का। मुझे मालूम है यहाँ बैठकर ये बात करना बहुत आसान है, लेकिन कश्मीर में जाकर इस बात पर अमल करना बहुत दुश्वार है। लेकिन अभी उन्होंने तारीख़ में, 70 साल तारीख़ में साबित किया कि थकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। अभी भी इंशाअल्लाह अल्लाह उन्हें हिम्मत देगा, ताकत देगा, और एक दिन आज़ादी भी हासिल करेंगे, और अपनी इस नस्ल को, अपनी नामूस को भी इंशाअल्लाह कश्मीरी बचाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह।